Yes, please. Hello to everybody. I welcome you all for this special occasion of the sixth inaugural meet organized by Maharishi Dayanand Yoga Academy. MDYA offers free coaching classes for students who aspire to qualify the Yoga Net JRF examination. I am Usha, a student of MDYA, and I'm here. I'm proud to say that it is the only educational institute in the country which has been conducting the free NET JRF coaching classes since 2020. And we are all here for the inaugural meet of the sixth batch. It gives me immense pleasure to introduce our distinguished guests for today, Professor Veer Sagar Jain, Dr. Hemant Bhargav, our founder, Sri Rahul Arya. I would now like to call upon Ms. Parika Jaiswal, our faculty member of the Hindi medium batch, for the Mangalacharana. हरिओम सभी को। अभी अपने मुंह को नमस्कार मुद्रा में बना लेंगे, आंखें सहजता से बंद। गहरी लंबी श्वास लेते हुए एक बार लंबा ओम का उच्चारण, तत्पश्चात वैदिक मंत्र ओम। ओम अग्निधया सुपथारा अस्मान् विश्वानि देव वयोनानि वेद्वा युयुद्धस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठामतेनं मुक्तिं विधे। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो विश्वश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानता देवा भव यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जनाना उपासते सञ्जानाना उपासते सञ्जनाना उपासते। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो नमः। ॐ हरि ओम। धन्यवाद। Thank you very much, Pratika ji. I would now like to introduce our founder, Sri Rahul Arya ji. Rahul ji is the founder of Maharishi Dayanand Yoga Academy, and he's pursuing his PhD from the S. Vyasa Yoga University, Bangalore. And he's done his BA in Yoga and Naturotherapy and in Yoga from Sri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University. Coming from a very humble background, Rahul ji has proved his mettle by qualifying the JRF in his first attempt. Ever since his JRF accomplishment,
He has consciously and continuously motivated thousands of students to take the path of the yogic education. He is a great teacher, as we all know, and a great motivator. He was recently felicitated by our president, Srimati Draupadi Marmuji, with a gold medal for MA in Yoga for the batch of 2021. He's a visionary. He wants to be a good researcher in the field of yoga, and also wants to start a yoga research laboratory and an institute. Last but not the least, because of his passion to be a good teacher and a good human being, we all know the quality of his teaching through the MDY classes that he conducts. So this was about a little introduction about our founder, Rahul Aryaji. Now I would like to invite Rahul Aryaji to speak a few words and introduce the other guests for today. Thank you, Samam. Thank you so much. Om Guru Brahma Gururvishnu Gurudevo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha। यहाँ उपस्थित सभी साथियों को नमस्ते, गुरुजनों को चरण वंदन। डॉक्टर जयसिंह गुरु जी यहाँ पर हैं, उनको सादर अभिनंदन। डॉक्टर हेमंत भार्गव गुरु जी को नमस्ते। प्रोफेसर वीर सागर जैन गुरु जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इसके अलावा हमारी पूरी टीम जो MDY की पूरी टीम तो जुड़ी ही नहीं है, अभी तो बहुत ही कम लोग जुड़े हैं, तो जितने जुड़े हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशन रह जाती है ऑनलाइन मीटिंग में। और इस कोचिंग में मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो कोचिंग है कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन है। कुछ लोगों में इस तरीके से मिसकंसेप्शन है, वो अपने गलत मन से निकाल दीजिए। तो पूरी तरीके से ये कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी हर नोट्स यहाँ पे हर क्लास रिकॉर्ड की जाती है और उसी दिन सेम डे पे रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दी जाती है। और 2020 से ये काम चल रहा है। 2000 से ज्यादा वीडियो अभी तक यूट्यूब पे जा चुकी है और हर वीडियो 1-1 घंटे की है। जो हमारे पहले भारत में जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ दिन पहले राजीव दीक्षित जी को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि पहले के गुरुकुल चलते कैसे थे। बाद में मैंने सोचा रही हम तो इनडायरेक्टली हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं कि मेन टीचर एक है, एक टीचर कुछ बच्चों को अटेंड कर देता है, फिर वो 50 बच्चे आगे 50 को अटेंड करते हैं, वो 50 बच्चे आगे 50 को अटेंड करते हैं। इस तरीके से पहले के टाइम में लाखों लाखों बच्चे, हजारों बच्चे इस तरीके से गुरुकुलों में पढ़ते थे। तो मैंने दूसरे तरीके से इनडायरेक्टली देखा, यार यहाँ पर भी तो वही हो रहा है। अब मैं तो सिर्फ ऊपर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब हमारी टीम तैयार हो गई है। अभी प्रेजेंट में अभी हमने लिस्ट देखी थी, लगभग 45 टीचर अभी एक्टिव मोड में है और लगभग 20 टीचर वेटिंग में हैं। और ये सारे के सारे जो टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ऑल टीचर्स आर माय स्टूडेंट्स। आई कैन से प्राउडली कि जितनी भी फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रही है और सारे के ऑलमोस्ट 60% स्कॉलर्स हैं। बाकी बच्चे स्कॉलर्स के वेटिंग लिस्ट में हैं। 1-2 साल में वो 10% PhD भी कंप्लीट कर चुके हैं ऐसे टीचर से। तो मैं अपने आप को बड़ा समझता हूँ जो इतनी छोटी सी एज में मुझे ये सौभाग्य मिला। तो हमारे 5 बैच कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी मीडियम की। स्टार्टिंग में हमने हिंदी मीडियम से स्टार्ट किया था, पिछली बैच से हमने इंग्लिश मीडियम को शुरू कर दिया। इंग्लिश मीडियम का एक बैच कंप्लीट हो चुका है, तो अभी सेकंड बैच है। तो हमारे टीचर्स जो जो साथ दे रहे हैं, मैं 5 मिनट में 5 से 10 मिनट में उन सभी टीचर्स को प्रेजेंटेशंस के जरिए आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ कि कौन कौन हमारा कंट्रीब्यूशन किस तरीके से कर रहे हैं। और इस बैच में आगे यानी कि पिछले वाले बैच के तो गिनाऊंगा तो 100 से ऊपर टीचर चले जाएंगे हमारे।
तो मैं पिछले बैच को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो जब हमारा रिजल्ट आ जाए यूजीसी का 10 से 15 दिन में, उसके बाद हम वो पूरे पीछे प्रीवियस बैच में जो टीचर रहे उनका हम थैंक यू करेंगे। होप माय ऑडियो एंड माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, प्लीज कंफर्म मी। Yes, sir. थैंक यू। तो हमारी जो एकेडमी है यूजीसी नेट जीआरएफ की ऑनलाइन कोचिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 की फ्री है यहाँ पे। हाँ, योगा वाले को पेपर 1 2 दोनों मिलते हैं, और जो नॉन योगा बैकग्राउंड के भी बहुत सारे बच्चे हैं, पेपर 1 तो सभी में कॉमन रहता है, पेपर 1 की तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे तैयारी। और इसके अलावा पीएचडी की प्रिपरेशन के 3 बैच यहाँ से जा चुके हैं, और पीएचडी में लगभग 25 से ज्यादा बच्चे हमारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में स्कॉलर्स बने हुए हैं आज के टाइम में। तो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी को हम फॉलो करते हैं, और इनकी जो कोटेशन है, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा, इसी को हम फॉलो करते हैं। और हमारी पूरी एकेडमी बिना एक्सपेक्टेशन के काम करती है, और हमें अपने आप ही पता नहीं कहाँ से हमारी हेल्प हो जाती है, हमें नहीं पता, अपने आप ही हमारी हेल्प हो जाती है। तो बिना एक्सपेक्टेशन के जो हम उसी फॉर्मूले को हम लेके चल रहे हैं, इस एकेडमी का उद्देश्य यही है। अब मैं एक एक करके अपने टीचर्स का शॉर्ट 5-5 सेकंड का एक एक टीचर का इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। हमारी निशा मैम है, पहले बैच से ही इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था, बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में हमारी पूरी हिंदी मीडियम बैच के कोऑर्डिनेट किया हुआ है निशा मैम ने, तो निशा मैम का थैंक यू। पुष्पा मैम जो हमारे रजिस्ट्रेशन वर्क को, भागवत गीता और जो हमारी कंपेटिटिव स्टडी होती है, उन सारी चीज़ों को हमारी उस समय हम देखती हैं। पहले बैच में इन्होंने क्वालिफाई कर लिया था अपने एग्जाम, 2020 से आज तक जुड़ी हुई है ये हमारे साथ। कुंदन जी हमारे सबसे सीनियर टीचर हैं, बिहार से हैं, एम्स रायपुर, हाँ रायपुर एम्स में ये फैकल्टी है वहाँ पे। और हठ योगी टेक्स्ट की सर्विस हमारे हिंदी मीडियम बैच में दे रहे हैं कुंदन जी। मयंक विश्वकर्मा जी हमारे बच्चों के सबसे चहेते टीचर हैं, 2-3 बार इनको, क्योंकि हम हर बार टॉप टीचर का निकालते हैं, तो रवि जी, कुंदन जी, मयंक जी, हर बार इन्हीं को ही बच्चे सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। तो मयंक जी सबसे चहेते टीचर्स में से हैं हमारी एकेडमी के, जो इस बैच में योग उपनिषद पढ़ाएंगे। अरुणा मैम जो हमारी 3rd बैच की स्टूडेंट रही थी, 4th 5th में टीचर रही, पहली बार में इन्होंने एग्जाम को क्रैक किया, और इस बैच में ये टीचिंग मेथड्स, मेन उपनिषद और हायर एजुकेशन टॉपिक पढ़ाएंगे। रवि सर मोस्ट पॉपुलर टीचर है, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले हमारी एकेडमी में टीचर हैं, एस व्यासा में ये पीएचडी कर रहे हैं, तो यहीं पे इन्होंने पीएचडी की ट्रेनिंग ली थी, और पहली बार में एस व्यासा में सिलेक्ट भी हो गए, और पहली बार में एमएससी करते हुए इनका जेआरएफ भी निकल गया, खाली रिकॉर्डिंग वीडियो से, ओनली रिकॉर्डिंग जो हम अब वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, उन्होंने वहीं से इन्होंने जेआरएफ निकाल दिया। तो रवि जी का थैंक यू जो अपनी इतनी ज्यादा सर्विस हमें देते हैं। जितेंद्र सर सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग, मेरे पीछे से कौन, जो भी पूरी एकेडमी को जिन्होंने संभाला हुआ है वो है हमारे जितेंद्र सर। अभी भी जो ग्रुप में जो डिसिप्लिन मेंटेन किया है जितेंद्र सर की है, और जितेंद्र सर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को संभालते हैं। जितने भी कौन टीचर एब्सेंट है, कौन नहीं है, किस तरीके से काम होना है, किसकी क्लास अरेंज करनी है, नहीं करनी है, एज इक्वल टू यूनिवर्सिटी चल रही है। आप लगा लो कि यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर होते हैं, 5, 10, 15, हमारी एकेडमी में 45 टीचर्स हैं। उन 45 टीचर्स को किस तरीके से मैनेज किया हुआ है, डेली की 6 क्लास होती है, 6 हिंदी मीडियम में, 6 इंग्लिश मीडियम में, 12 क्लास को मैनेज करना, जो लोग इस मैनेजमेंट करते होंगे उनको पता होगा कि कितना हेडेक का काम होता है। तो जितेंद्र सर ने हैंडल किया हुआ है, जितेंद्र सर का हृदय से आभार। गीता मैम चेन्नई से हैं, लास्ट बैच से, फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड एंड शी इज वर्किंग इन द post office and GST department she is working, and she has completed her PhD, and now this batch she is going to teach the research aptitude in English medium batch. Thank you Geeta ma'am for your service. Usha ma'am who is doing anchoring at present here. So Usha ma'am belongs to Telangana, and
English medium batch. This time she is providing chanting and the teaching of the Yog Darshan. So great, thankful to Usha ma'am for your service. गिरिराज सर, ये एमपी से हैं और ये हमें आईसीटी पढ़ा रहे हैं। लास्ट बैच में इन्होंने रिसर्च और हायर एजुकेशन पढ़ाया था। इनकी पीएचडी चल रही है। इतने सीनियर होते हुए भी पढ़ाई कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं एकेडमी में, तो हम अपने आप को बड़ा लकी समझते हैं। थैंक यू सो मच गिरिराज सर। डॉक्टर रोहिणी गौतम, जो खुद डॉक्टर हैं, पिछले 20 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सर्विस दे रही हैं। हालांकि इनको कोई नीड नहीं है, उसके बावजूद भी सेवा करने में पिछले 2-3 बैच से कंटिन्यू एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, थेरेपी, क्योंकि इनसे ज्यादा अच्छी थेरेपी शायद ही कोई पढ़ा सकता है हमारी एकेडमी में, क्योंकि खुद 20 साल से डॉक्टर हैं और इन्हीं के लेवल का टॉपिक हमने दिया है। और बच्चों की सबसे चहेती टीचरों में से एक है डॉक्टर रोहिणी, जो हिंदी इंग्लिश दोनों बैच में टीचिंग करती है। थैंक यू सो मच रोहिणी मैम। अपूर्वा तिवारी जी, जो LNIP से पीएचडी कर रही हैं और यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा रही हैं हिंदी मीडियम बैच में, तो अपूर्वा जी का भी थैंक यू। साक्षी हिमरल जी, जिन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई है, क्योंकि हमारा सारा काम एक दूसरे से बनता है। मैं तो सिर्फ ऊपर से देखता हूँ, हमारी टीम ही सारा काम करती है। तो साक्षी जी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रही है, अभी कुछ दिनों में शुभकामना देने वाली है साक्षी जी, तो पहले से मैं एडवांस में यहीं से बधाई दे देता हूँ साक्षी जी को, और थैंक यू जो आप इतनी सर्विस हमें दे रहे हैं यहाँ पे। गौरी सिंह जी, जो खुद DAV स्कूल में टीचर हैं और टीचर होने के बावजूद भी जो रात को 2 घंटे बचते हैं उसमें आकर के पढ़ाती है बच्चों को इंग्लिश मीडियम बैच में, और हठ योगी के 3 टेक्स्ट इन्होंने लिए हैं इस बार इंग्लिश मीडियम बैच में। थैंक यू सो मच गौरी मैम। अदिति काद्यान जी, हिमाचल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी चल रही हैं। पिछले से पिछली बार इनका JRF निकला था, यूपी से हैं ये, और इस बार ये साइकोलॉजी हिंदी मीडियम में, कम्युनिकेशन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे। अदिति जी का भी थैंक यू। मधु जी जो ये भी अदिति की ही क्लासमेट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से पीएचडी चल रही है इनकी, और योग वशिष्ठ से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, और इंग्लिश मीडियम बैच को पूरा कोऑर्डिनेट किया हुआ है मधु मैम ने। थैंक यू सो मच मधु मैम। लक्ष्मी साहू जी छत्तीसगढ़ से हैं, पहली ही बार में। लक्ष्मी जी अभी भी मास्टर के 3rd सेमेस्टर में हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में इन्होंने JRF निकाल लिया था हमारी कोचिंग क्लास, MSc फर्स्ट सेमेस्टर में, और 2nd सेमेस्टर में हमने इनको टीचिंग के लिए डाल दिया। पिछली बार योग उपनिषद क्या जबरदस्त पढ़ाए थे इन्होंने, इस बार ये योग दर्शन पढ़ाने वाली है आपको हिंदी मीडियम बैच में। और इनकी एज इतनी कम है, आप उस पर मत जाइए कि छोटी एज है, लेकिन जब ये योग पढ़ाना शुरू करती है तो इनके आगे सारे फेल हैं। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी। साक्षी जी अमेठी यूनिवर्सिटी से पीएचडी चल रही है इनकी, नोएडा से, तो इंग्लिश मीडियम बैच में थेरेपी पढ़ाएंगी ये। थैंक यू सो मच साक्षी जी। मनोज जी वेस्ट बंगाल से हैं, जो इस बार हायर एजुकेशन पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच मनोज जी। पारिका जायसवाल, जिन्होंने अभी मंगलाचरण करवाया था, DSPV बिलासपुर से हैं ये, और मेन उपनिषद योग वशिष्ठ पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच प्रतिका जी। अदिति साहा, जो ऋषिकेश एम्स से पीएचडी चल रही है इनकी, और पिछले बैच में इन्होंने एनाटॉमी पढ़ाया था, इस बार फिर से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और आयुर्वेदा पढ़ाएंगी इंग्लिश मीडियम बैच में। थैंक यू सो मच अदिति मैम। चंद्र ज्योति जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से पीएचडी चल रही है। इन्होंने भी 2nd अटेम्प्ट में इनका JRF निकल गया था हमारी क्लास से, और पिछले बैच में भी इन्होंने भागवत गीता पढ़ाई थी। इस बार एनाटॉमी पढ़ाएंगी हिंदी मीडियम में, और फाउंडेशन ऑफ योगा पढ़ाएंगे आप सबको। थैंक यू सो मच चंद्र ज्योति मैम। राखी मैम, जिन्होंने पहली बार में UGC एग्जाम क्लियर कर लिया, क्योंकि एज इनकी ज्यादा है, JRF नहीं कर सकती है, इसलिए UGC नेट इनको किया, तो इस बार ये बायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ाएंगी। थैंक यू सो मच राखी मैम। कौशल जी, जो MP से हैं, DSCV से पीएचडी चल रही है इनकी, और इनका कंटिन्यू नेट एग्जाम निकल रहा है। इस बार हमारी पूरी आशा, इस बार इनका JRF निकल जाएगा, क्योंकि 1-2 मार्क्स से हमेशा रह जाते हैं कौशल जी।
और पिछली बार इन्होंने नव दर्शन बहुत अच्छे से पढ़ाया, इस बार इन्होंने हठयोगी के टेक्स्ट कुछ और पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच कौशल जी। पारिका मैम जो दिल्ली से हैं, रहती गुड़गांव में हैं, और पिछली बार प्रैक्टिकल योगा दोनों में पढ़ाया, इस बार फिर से पढ़ा रही है। इस बार मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे आप सबको। बच्चों की बहुत चैती मैडम है पारिका मैम, थैंक यू सो मच। मिस्टर प्रवेश चंद्र भट्ट जी, जो इस बार की नई फैकल्टी है हमारे, पिछली बार इन्होंने कई बार लगातार टॉप किया हिंदी मीडियम बैच में, और एक्सपेक्टेशन रखते हैं इस बार इनका एग्जाम टॉप रैंकिंग में, इंडिया के टॉप रैंकिंग में इनका नाम आएगा। देखता हूँ, मुझे पूरी आशा है प्रवेश जी का आना चाहिए इस बार जीआरएफ में टॉप रैंकिंग में। थैंक यू सो मच प्रवेश जी। किरण जी, जो इस बार टीचिंग मेथड से पढ़ाएंगी, ये हरियाणा से हैं, थैंक यू सो मच किरण जी। आरती मैम जो अमृतसर से जुड़ी हुई हैं, इस बार आईसीटी पढ़ाएंगी, थैंक यू सो मच आरती मैम। ये मैं खुद हूँ, मेरा सौभाग्य जो सभी लोगों को जोड़े रखा हुआ है, थैंक यू। अपने आप को थैंक यू बोलता हूँ, और सभी को थैंक यू, सभी गुरुजनों को धन्यवाद। और अभी थोड़ी देर पहले ओम प्रकाश सर का कॉल आया था, उनके पीए का, इमरजेंसी में एकदम से मीडिया उनके घर आ गई और लाइव प्रोग्राम उनका मीटिंग में चल रही है वहाँ पे टीवी पर, तो उनका क्षमा आई है कि मैं नहीं जुड़ सकता। तो जयसिंह गुरु जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, और जयसिंह गुरु जी के बारे में 2 लाइन्स मैं आप सबको बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारे ये मेरे, क्योंकि जब मैं मास्टर कर रहा था एलबीएस यूनिवर्सिटी में, वहीं से हमारे टीचर रहे हैं, और मेरे को तो नेट का मीनिंग भी नहीं पता था। जब मैंने, कई लोग ये समझते हैं ना कि राहुल सर का तो पहले का बैकग्राउंड होगा इसलिए इन्होंने पहले बार में क्रैक कर लिया, ऐसा नहीं है। मुझे तो सेल का मतलब भी नहीं पता था, सेल के ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, स्केलेटल सिस्टम की कितनी बोन्स होती है, उनकी नेम्स मुझे नहीं पता था। तो मेरे को खुद को जो इंस्पायर करने वाले पर्सन हैं वो डॉक्टर जयसिंह गुरु जी हैं। प्रतिज्ञा करवाते थे मुझे, तो नेट नेट क्या होता है, नेट फुटबॉल वाला नेट समझता था। बाद में जब गुरु जी ने धीरे धीरे मोटिवेट करना शुरू किया, तो ये आज गुरु जी की प्रेरणा है जिससे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और ये पूरी एकेडमी गुरु जी के ही आशीर्वाद से बनी हुई है। तो मैं गुरु जी को ही पहले आमंत्रित करता हूँ, उसके बाद में हेमंत सर, और उसके बाद में वीर सागर जैन गुरु जी को बुलाएंगे। जी गुरु जी नमस्ते। यहाँ पर उपस्थित हमारे गुरु जी, हमारे एचओडी प्रोफेसर वीर सागर जैन जी और हेमंत भार्गव जी, मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु जी आ रही है। और यहाँ पर एमडीए यानी कि जो आपकी संस्था है एमडीएनवाई के सभी पढ़ाने वाले शिक्षक और पढ़ने वाले विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तो कुछ नहीं है, उस परमात्मा की कृपा है कि हम चाहते हैं कि योग आगे बढ़े और उसके अंदर ऐसे योग्य योग्य शिक्षक मिलेंगे, शिष्य मिलेंगे, वो योग को आगे बढ़ाएंगे। हमारे एचओडी प्रोफेसर वीर सागर जैन जी से हमें प्रेरणा मिलती है, उनका अनुभव मिलता है, उनके सानिध्य में हमें काम करने का मौका मिलता है, और उन्हीं से सीख करके हम नीचे जो युवा वर्ग है उनको प्रेरणा देने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो विषय है योग, ये अपने आप में, जैसे आपने गीता में पढ़ा होगा, कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं कुछ नया नहीं बता रहा, मैं कुछ नया नहीं बता रहा, सब कुछ पहले से है, मैं तो उसको याद दिला रहा हूँ। तो उसी प्रकार से ये विद्या हमारे देश की, हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे पूर्वजों की जो लुप्त हो गई थी, इसको उजागर करने का काम ये सभी साधक कर रहे हैं, और उनका सभी को एक साथ पिरो करके इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसा पुण्य का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी प्रतिज्ञा है, मैं पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार करूंगा और मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा।
मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, आबाद है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। तो इस प्रकार से आप नित्य नियमित इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे, आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो जो आपके विचार हैं वो जब सबकॉन्शियस माइंड में इंटर कर जाते हैं तो वो फलीभूत हो जाते हैं। और योग विद्या अति प्राचीन विद्या है, हमारी विद्या है, हमारे पूर्वजों की विद्या है, हमारे देश की विद्या है। तो इसको आप जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं। वो किसी ने कहा है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। अपना पेट तो कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े, गधे, जितनी भी योनियां है सभी भरते हैं, लेकिन मानवता वही है जो दूसरों के लिए भी कुछ कोई करता है, जीवों के लिए, मनुष्य के लिए, योगियों के लिए। तो जिस प्रकार से राहुल जी जो कार्य कर रहे हैं, इनकी टीम जो कार्य कर रहे हैं, तो ये बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये कार्य लगातार बढ़ता रहे और इतना बढ़े कि हर आदमी तक योग की पहुंच हो। और इसीलिए सुलभ किया है इन्होंने। सुलभ कितना आसान है कि घर बैठे आप कर सकते हो इसको। जो ऐसी ऐसी पुस्तकें जो सिलेबस में नहीं है लेकिन नेट में है, तो उनको पढ़ने का भी मौका मिलता है और इस बहाने से नए लोगों को जुड़ने का मौका मिलता है, प्रायोगिक अभ्यास भी करते हैं। तो योग का प्रचार प्रसार राहुल जी कर रहे हैं और ये आगे बढ़ता रहे। और हम चाहते हैं कि ये जैसे जैसे संस्था है और प्रोग्रेस करे और उन्नति करे। मैं ये चाहूंगा कि आपकी जो टीम है, इस टीम को आप दिल्ली में बुलाइए। मैं इस टीम को सम्मानित करना चाहूंगा अपनी तरफ से, ताकि ये काम और अच्छी प्रकार से करें और इस कार्य को और तेजी से आगे बढ़ाएं। क्योंकि आने वाला समय आप देख रहे होंगे कि हमारे देश के अंदर सांस्कृतिक जो विरासत है उसको खत्म करने के लिए प्रयत्न चल रहे थे। जैसे कि आपको मालूम है, संस्कृत भाषा का धीरे धीरे नाश यानी कि खत्म करने के लिए चल रहे थे। कोई राम का नाम नहीं ले सकता था, कोई इस तरह से जो धार्मिक बातें नहीं कर सकते थे देश के अंदर। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति चलती थी, सब कुछ ऐसा ही हो रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे आप देख रहे होगे कि 2024 है, 22 जनवरी को पूरे दुनिया देखेगी भव्य राम का मंदिर बनते हुए। तो ये राम की कृपा है, उसकी वजह से हम दोबारा से हमारी संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। और धर्म से ही संस्कृति, धर्म से ही राजनीति होनी चाहिए। क्योंकि धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि भाई जो आजकल फैलाया जाता है, बताया जाता है। धर्म का मतलब जो धारण किया जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति इतनी सुदृढ़ संस्कृति है, इसके अंदर आप जानते हैं सभी एक साथ मिलके जुलके रहते हैं। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख और हिंदू सभी एक हैं, कभी कोई वो नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार से हमारे अंदर विभेदन डाला गया, बहुत कुछ कम्युनिस्टों ने पढ़ाया, योग कुछ नहीं है, योग से कुछ नहीं होता है, आयुर्वेद से कुछ नहीं है, नीम के पत्तों से कुछ ठीक नहीं होता। तो हमारे दिमाग में भर गया कि हरे पत्ते वाली गोली से ही ठीक हो सकते हैं। उन धारणाओं को तोड़ते हुए योग, आयुर्वेद और प्राचीन विद्याएं, संस्कृत, इसकी तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं और आप योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि योगियों आगे बढ़ो, बहुत कुछ करना है। और हिमालय में बहुत सारे योगी अभी भी तपस्या कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा महाशय श्यामाचरण लाहिड़ी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में, कि हिमालय के योगियों ने उनको वहां बुलाया और उनको दीक्षा दी और जाओ। और एक गृहस्थ रहते हुए उन्होंने क्रिया योग का बहुत लंबा चौड़ा, आपको पता होगा उनके कौन कौन शिष्य हुए हैं, उन्होंने क्या सिखाया था। और गृहस्थ रहते हुए योगी, क्योंकि एक धारणा फैलाई गई कि योगी को शादी नहीं करनी, योगी तपस्या करेगा, लंगोट पहनेगा, भगवे कपड़े पहनेगा, आश्रम में रहेगा, पहाड़ों में रहेगा, वही योगी होगा। ऐसा एक माहौल बनाएगा। लेकिन नहीं, जो घर में रहते हुए गृहस्थ भी योगी हो सकते हैं। और इससे को सिद्ध किसने किया? महाशय श्यामाचरण लाहिड़ी ने। और वो एक गृहस्थ योगी थे, उनके बच्चे भी थे, उनकी पत्नी भी थी और सरकारी कर्मचारी भी थे वो। और बहुत बड़े योगी हुए हैं। आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। क्योंकि आप नेट की तैयारी करते हैं तो जरूर उनकी जीवनी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं मेरी बात को यहीं पर पूर्ण करता हूँ और सभी योगियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग सभी इस बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए
बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। गुरुजी के सानिध्य में आप लोग आगे बढ़े, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय इस मामले में बहुत कुछ कर रहा है। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर योग डिपार्टमेंट है, और योग डिपार्टमेंट है जिसके निमित्त बहुत सारे बच्चे एम्स के अंदर है, फिजियोथेरेपिस्ट, एम्स के अंदर है योगा थेरेपिस्ट भी हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी लगे हुए हैं। और हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आपको जो जोड़ के रखे हुए राहुल जी हैं, हमारे विश्वविद्यालय के रशिया के अंदर योगा टीचर हैं, रशिया में बड़ी संस्था बना रखी है, और कई देशों के अंदर जो अपना काम कर रहे हैं, और कई ICCR के तहत विदेशों में भी कई गए हैं। तो हमारा विश्वविद्यालय बहुत कुछ कर रहा है, और आप सभी जो साधक जुड़े हुए हैं, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि एक चिकित्सा है जिसको बोलते हैं गव्य चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा, उसके निमित्त है जिसको बोलते हैं लाइलाज बीमारी है, मानसिक विकार हैं, इस तरह के हैं, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हो और उसका भी आप उपचार ले सकते हो। हम उसको सलाह देंगे, आप लोग है उसको कर सकते हो, ये मेरी तरफ से सुझाव है। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी गुरुजी प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। उस समय में आगे कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्ते। Thank you very much, sir. Now I would like to introduce our next guest of honor, Dr. Hemant Bhargav. We are all delighted to have a very young and accomplished guest today with us. Dr. Bhargav is currently working as an associate professor in Department of Integrative Medicine at NIMHANS, which is the National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore, India. He's done his MBBS from Indira Gandhi Government Medical College, Nagpur, and he also has an MD in Yoga and Rehabilitation from the S. Vyasa University, and also a PhD in Yogic Sciences from S. Vyasa University. As with all our guests, he has a long list of achievements. Just to list a few feathers in his hat, he has a gold medal for his MD, which he's done in 2009, and as well as a best PhD thesis. He's received the most promising young faculty scholarship. He has also received many international travel awards. He has over 150 research publications in peer-reviewed journals. Dr. Bhargav has authored 2 very interesting books, one on yoga for depression and 2, the textbook of yoga and mental and neurological health care. He's done some remarkable work during COVID crisis by creating the prophylactic Ayush guidelines for children during COVID-19 pandemic, which was well received and appreciated by Ministry of Ayush Government of India. He is the kind of scientist whose projects are funded by DST Satyam, DST Serve, CCR Vayan, and the Ministry of Ayush. I would now like to call upon Sri Hemant Bhargav ji to motivate our faculty and students and say a few words. Sir, over to you. Thank you, Ushashri. First of all, I would like to congratulate Mr. Rahul Arya. Through Maharshi Dayananda Yoga Academy, the kind of work that is going on, it is really wonderful. My roots are from Rajasthan, from Jaipur, तो मैं आराम से हिंदी में भी बात कर सकता हूँ और मुझे हिंदी लैंग्वेज बहुत पसंद है। जब मैं जैसे जय सिंह जी कह रहे थे कि जो हमारा देश है वो अब अपने आत्मविश्वास को वापस पा रहा है, वी आर गेनिंग बैक अवर कॉन्फिडेंस। मैं 2012 में पहली बार यूएस गया था जब मैंने अपना एमडी का थीसिस कंप्लीट किया था और मैं एक पोस्टर प्रेजेंटेशन करने के लिए सोसाइटी फॉर न्यूरो साइंस कॉन्फ्रेंस में न्यू ऑर्लिन्स गया था उस समय। और उसके बाद में जब मैं अभी रिसेंटली 2022 में बॉस्टन गया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया था, मैंने बहुत बदलाव देखा। जिस तरीके से हमारे देश के बाहर लोग अब भारतीयों को, हमारे देश को, जो हमारे देश की जो छवि है
वो अब बहुत बदल चुकी है। अब बहुत रिस्पेक्ट है हमारे देश के लिए, लोग गाइडेंस चाहते हैं, लोगों को ये आशा है कि भारत बहुत सारे जो ज्वलंत विषय हैं, जो प्रॉब्लम्स है जिससे दुनिया ग्रसित है, वो क्लाइमेट से लेकर के हमारे अंदर जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स है जो इतने बढ़ते जा रहे हैं, उन सब में भारत एक आशा की किरण की तरह उभर के आया है। 2020 में हमारे इंस्टीट्यूट में हिज होलीनेस दलाई लामा जी आए थे। उनसे हमारे डिपार्टमेंट के एक साइकोलॉजिस्ट ने, जो प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी है, उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने उनसे पूछा कि दलाई लामा जी, आप जो हमारी ईस्टर्न साइकोलॉजी है, जो इंडियन साइकोलॉजी है, उसको और वेस्टर्न साइकोलॉजी को कैसे देखते हैं, आप कैसे उनको कंपेयर करते हैं? तो दलाई लामा जी ने बहुत बोल्डली उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है वो भारतीय मनोविज्ञान के सामने किंडरगार्टन में है, मतलब कि वो एक केजी स्कूल में है, और जो भारतीय जो मनोविज्ञान है वो पीएचडी के लेवल की पढ़ाई है। लेकिन वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम जो तिब्बतन्स है वो भारत को अपना गुरु मानते हैं, और जब भारत पश्चिम की तरफ देखता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम किस तरफ देखें। तो अब वो समय आ चुका है जब हम वेस्ट को देखना बंद कर दें, वेस्ट के मॉडल पे चलना बंद कर दें, और हम हमारे जड़ों में जाएं। स्वामी विवेकानंद जब वो भारत भ्रमण कर रहे थे और कन्याकुमारी में बैठ करके जब उन्होंने 3 दिन मेडिटेशन किया, तो उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था कि 2020 उसके बाद में उस समय में भारत फिर से खड़ा होगा और विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। तब उन्होंने और एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि भारत विश्व गुरु स्काई स्क्रैपर्स भेजकर और सैटेलाइट्स भेजकर नहीं बनेगा, वो तो दूसरे देश भी करेंगे, लेकिन भारत विश्वगुरु इसलिए बनेगा क्योंकि भारत वापस अपनी जड़ों में जाएगा। जब हम वापस अपनी जड़ों में जाएंगे तो हमें वो वेल्थ ऑफ विजडम, वेल्थ ऑफ नॉलेज मिलेगा जो दुनिया में और कहीं भी नहीं है। और मुझे इतना आनंद हो रहा है यहाँ पे बैठकर कि हमारे सारे जो मित्रगण हैं, इतने इतने प्यारे टीचर्स हैं जो कि इन स्टूडेंट्स को बिना कुछ लिए एक कर्मयोग कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस साइंस की ओर जुड़े। आप सभी को मतलब मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि आप सबने इतने सारे स्ट्रीम्स अवेलेबल है जो बहुत लुक्रेटिव है, जो आपको बहुत सारा पैसा दे सकते हैं, जिसको अभी भी भारत में मतलब कि जो ब्रिटिश कल्चर है उस हिसाब से उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है, लेकिन आप वो सब छोड़ के आप वापस अपनी जड़ों की तरफ मुड़ रहे हैं। मैं जब एमबीबीएस कर रहा था तो मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। मैं विदर्भ रीजन में मैं टॉप में था। जब मैंने सीईटी क्रैक की उस समय 2002 में, मेरे पिताजी को बड़ी आशा थी कि मैं बड़ा कार्डियक सर्जन या न्यूरो सर्जन बनूंगा, और उस एमबीबीएस को करने के बाद में मुझे ये लगा कि मेडिसिन का सैचुरेशन आ चुका है और हम कितनी भी दवाइयाँ उनको दें, लेकिन ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के कारण जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है वो कम नहीं हो रहा है। स्ट्रोक के अटैक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, यंग से यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है। तब मुझे लगा कि मॉडर्न मेडिसिन को और कुछ भी चाहिए, इसमें बहुत सारे गैप्स हैं, और अगर मैं भी उसी स्ट्रीमलाइन में चला जाऊंगा तो ये गैप कौन भरेगा। तो मैंने उस स्ट्रीम को एमबीबीएस करने के बाद में मैंने योग और आयुर्वेद की तरफ गया और मैंने उस पर सिस्टमेटिक रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि दुनिया आपको तभी सुनेगी जब आप रिसर्च की लैंग्वेज में बोलोगे। और उस एफर्ट में मुझे पता चला कि बहुत कुछ है जो हम योग और आयुर्वेद से हम हमारे मेडिकल साइंस को दे सकते हैं,
और अब मैं इस डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में एसोसिएट प्रोफेसर बन चुका हूँ निम्हांस के। और हम जो प्रिंसिपल जो हमारे उपनिषद में, वेदों में, पतंजलि योग सूत्र में लिखे हैं, उनके ऊपर बहुत ही सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ में हम रिसर्च कर रहे हैं। और मैं आप सभी को जितने भी यंग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तरफ आप अपना ज्ञान बढ़ाइए और दूसरी तरफ आप अपने आप को रिसर्च मेथोडोलॉजी में, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में भी इक्विप कीजिए। आप जो भी करते हैं उसको डॉक्यूमेंट कीजिए और उसको कहीं ना कहीं पब्लिश करने की कोशिश कीजिए। अब दिखता है कि अब भारत में भी जो हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, योग के फिजिशियंस हैं, वो भी रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट दे रहे हैं और ये फील्ड काफी तेजी से रिसर्च में अब आगे बढ़ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि आप सभी जब अपना JRF क्रैक कर लेंगे और PhD करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अपने डोमेन को दोनों बैलेंस रखिए, ईस्ट का भी लीजिए और वेस्ट का भी लीजिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो आप चेक करेंगे, वो हमेशा उसको अपने जड़ों से लीजिए, अपने स्क्रिप्चर से लीजिए। तो इसके साथ मैं फिर से एक बार राहुल आर्या जी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मुझे बहुत आनंद है कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं सेल्फलेसली। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो भी प्रयास हो उसमें आप सभी सफल हो। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते। उषा मैम। So thank you very much. It was very motivating and very inspiring. I would now like to call upon our third guest, Sri Veer Sagar Jain ji. Veer Sagar ji is the, let me now introduce him first before we give the stage to him. He's the head of Department of Yogic Sciences and Jain Philosophy at Sri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit University. He has an MA, MPhil and a PhD in Jain Philosophy. Veer Sagar ji has authored more than 40 books and has more than 150 research articles on his name. He is a very respected teacher of Sanskrit, Prakrit, and philosophy, and he is one of the great speakers of philosophical and spiritual discourses. Now, without any ado, let me call upon Professor Veer Sagar ji to say a few words to encourage and guide the students and faculty of MDYA. Sir, over to you. ओम नमः। प्रिय राहुल जी, हमारे योग विज्ञान विभाग के आचार्य डॉक्टर जय सिंह जी और सभी योग के जिज्ञासु छात्र छात्राओं, शोधार्थियों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि राहुल आर्य जी एक बहुत अच्छी योग एकेडमी का शुभारंभ कर रहे हैं और वो भी बहुत ही निष्काम भावना से, जन सेवा की भावना से। ये सब आज के समय में बहुत दुर्लभ है। सब लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर काम करते हैं। निस्वार्थ भाव से जन कल्याण का काम करना, ये तो भगवत्ता का काम है। तो ऐसे करके, और मुझे पता चला कि ये 2 वर्ष से इस काम को कर रहे हैं। लगभग 2000 वीडियोज 1-1 घंटे के इनके उपलब्ध हैं। तो ये सब जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं इस काम के आगे बढ़ने की, बहुत अधिक आगे बढ़ने की मंगल कामना करता हूँ। मेरे मन में ये बात एक
योग को लेकर के हमेशा रहती है कि ज्यादातर लोग योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम मात्र समझते हैं, जबकि ये अर्थ उसका 2% है। योग को यदि 100% समझना हो तो उसमें 98% बातें और भी दूसरी बहुत कुछ हैं। योग एक बहुत ही व्यापक विषय है। ये केवल तन शुद्धि का नहीं है, ये मन शुद्धि का भी है, ये वचन शुद्धि का भी है। योग से शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता है, योग से व्यक्ति एक श्रेष्ठ वक्ता भी बनता है। योग के कारण नाना प्रकार के मनोरोग भी ठीक होते हैं। योग हमारे परिवार को भी अच्छा रखता है, योग हमारे समाज को भी अच्छा रखता है। योग से देश की आर्थिक उन्नति का भी बड़ा गहरा संबंध है। योग से देश की राजनीतिक उन्नति का भी गहरा संबंध है। मैं तो ऐसा बहुत अपने विद्यार्थियों से कक्षा में पूछता रहता हूं कि प्रदूषण को मिटाने में योग का योगदान, इस विषय पर शोध पत्र लिखो और मुझे लिख कर दो। मैं यहाँ पर बहुत सारे अध्यापक अध्यापिकाएं और बहुत सारे छात्र जुड़े हुए हैं। मैं बहुत अच्छे मन से और गंभीरता से जोर देकर ये बात कहना चाहता हूं कि आपका जो योग का ज्ञान है वो सीमित नहीं होना चाहिए, संकीर्ण नहीं होना चाहिए, संकुचित नहीं होना चाहिए और आग्रहबद्ध नहीं होना चाहिए। आप विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो विश्वविद्यालय की तरह आपका चित्त भी विश्वव्यापी होना चाहिए। ऐसी जीवन की कौन सी समस्या है जिसे योग नहीं सुलझाता? योग जीवन की सभी समस्याओं की चाबी है और हमें उस बात को स्वयं भी अच्छी तरह समझना है और अपने विद्यार्थियों को, साथियों को भी समझाना है। योग आकाश की तरह अनंत है और बहुत प्राचीन भी है। योग कोई आज नहीं आया है, भले इसकी चर्चा आज बड़ी है, लेकिन योग अत्यंत प्राचीन है। श्री आदिनाथ समारंभम ऐसे हठयोग प्रदीपिका में लिखा है। महाभारत में लिखा है, हिरण्य गर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातनः। भगवान ऋषभ देव इस पृथ्वी पर योग के प्रथम प्रवर्तक हुए थे। मैं चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी योग की मूल स्रोत को भी समझें, पहचानें। योग परंपरा जैन दर्शन में भी बहुत विशाल पाई जाती है। मैं जैन दर्शन का विद्यार्थी होने से उसके बारे में आपको काफी कुछ बातें बता सकता हूँ, सामग्री भी उपलब्ध करा सकता हूँ। अगर कोई जैन योग परंपरा पर भी विशेष अध्ययन या शोध कार्य करना चाहे तो हम उसे भी बता सकते हैं बहुत कुछ। और आप लोग सब जो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपको शुभकामना देता हूँ। हेमंत जी ने भी अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और आपके सभी अध्यापकों का परिचय जानकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो बार बार आपको शुभकामना देता हूँ। राहुल आर्य जी ने जो ये स्टेप उठाया है
इस युवावस्था में वे जिस तरह से जन सेवा के द्वार खोल दिए हैं, ये सब उनका अभिनंदन करने लायक है। अभी जय सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा था कि आपकी टीम हमारे विश्वविद्यालय में किसी दिन आए तो हम आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आपका ये यज्ञ बहुत अच्छी तरह से पल्लवित, पुष्पित, फलित हो, यही शुभकामना मेरी है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुजी, नमस्ते। Sir, dhanyawad, sir. It was very motivating and very inspiring. I thank all our guest of honors today for motivating us, inspiring us, both the faculty and also the students of Maharishi Dayanand Yoga Academy. Sir, thank you once again. I would now like to call upon Pratika Jaiswal ji for the closing prayer. सर प्रणाम सर, मैं एक बात कर रहा हूँ। जी जी मेंग जी बोलिए। जी प्रणाम सर, थोड़ा सा मैं अभी डिपार्टमेंट से ही आ रहा हूँ। आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। स्पेशली सर मैं हेमंत सर को भी प्रणाम बोलना चाहूँगा। सर मैं आपके रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा था। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ मयंक जी। जी सर, मैं आपके रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा था तो मुझे विश्वास नहीं, मतलब जैसे ही मैंने देखा कि आप भी आ रहे हैं आज के इनॉग्रेशन में। सर मैं इसमें पढ़ाता हूँ, MDYA में टीचर हूँ। राहुल सर ने शायद बताया होगा। मैं सर तो आपके रिसर्च पेपर पढ़ रहा था सर, बहुत अच्छा आपका काम है। अभी आप देखेंगे भी तो मैं ये वाला रिसर्च पेपर सर आपका इफेक्ट ऑफ MSRT टेक्निक एज एडम योगा थेरेपी, क्वालिटी ऑफ स्लीप, पेन, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, सर ये वाला पढ़ रहा था मैं कुछ देर। क्या बात है मयंक जी, आपने दिल खुश कर दिया हमारा। ये वाला रिसर्च पेपर पढ़ रहा था सर मैं। सर आपसे एक मेरे को क्वेश्चन था सर, मैं यही पूछ लूँ सर पब्लिक में या फिर पर्सनल? सर आप थोड़ा टाइम दे पाएंगे मुझे? नहीं, मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा कि मेरा नंबर आपसे शेयर करें जी और जी जी हम सर। उससे डिटेल में हम चर्चा कर पाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी, आपने इतना इंटरेस्ट दिखाया हमारे काम में। जी सर, जी सर, बहुत पैरों से। जी सर, थैंक यू सर। जी थैंक राहुल यू सर। थैंक यू। कोई और पार्टिसिपेंट्स हैं? किसी की होती है? चलो मैं मौका ही दे देता हूँ 5-10 मिनट के लिए। किसी के अंदर की इच्छा हो तो सामने आ सकता है, कोई भी कुछ बोलना चाहता हो। Sir, रश्मि, please keep guiding us because we are all aspiring to either get into teaching or do our PhDs. Some of us are already doing our PhDs. Teachers like you, your blessings are very much needed. Your guidance is very much needed. We will definitely reach out to you all, sir. Thank you so much. Thank you. थैंक यू समय। All the very best to all the PhD students here, and you know I am available if you need any kind of guidance. You know you can contact Rahul Arya ji, and those who are qualified for JRF NET. You know I would like to tell you that Nimhans also offers PhD in yoga now for JRF NET candidates, and all of you are welcome to apply. Namaste. Thank you very much, sir. थैंक यू हेमंत सर। हेमंत सर बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं, तो मुझे भी आवश्यकता पड़ी थी तो सर ने मेरा भी को गाइड बनना एक्सेप्ट किया है। तो शायद ही इतनी हेल्प, मैं बहुत कम लोग टीचर ऐसे मिलते हैं जो बिल्कुल जानते नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी, मैं बोलता था ना कि दुनिया को सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट के आएगा। ये उसी का ही एग्जाम्पल है। अभी मेरा कोई ज्यादा संपर्क नहीं था हेमंत सर से, लेकिन MDYA की वजह से हेमंत सर इतने प्रभावित हुए हैं और बिना किसी क्वेश्चन किए उन्होंने मेरे गाइड बनना स्वीकार कर लिया है। तो ये लाइव एग्जाम्पल है इसी चीज का। तो आपको भी हम यही बोलेंगे, आप निष्काम होकर कर्म कीजिए, आपके पास कर्म फल किस तरीके से लौट के आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आएगा जरूर, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। एक होता है कि एक्सपेक्ट करके आए, एक बिना एक्सपेक्टेशन के आए। बिना एक्सपेक्टेशन में मजा ही कुछ और है।
तो मैं तो बड़ा लकी हूँ। तो इस तरीके से अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है मेरे साथ। थैंक यू। कोई और जिज्ञासु है क्या? फिर हम ओवर करते हैं मीटिंग को। सर नमस्ते, मेरा नाम राजेश्वरी है। जी मैं अभी ज्वाइन हो पाई, मेरा कुछ क्लास था। तो ये क्या टीचिंग हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा सर? both language. Okay, I'm giving guidelines to you from tomorrow. Who has done the registration? So I think they have been added in the group. Okay, from tomorrow English medium batch will be separate regularly. From tomorrow 4 classes will be there in English medium batch, and same days uploading you will get. और हिंदी मीडियम का बैच पूरा अलग होगा। हिंदी लैंग्वेज का अलग है, इंग्लिश का अलग है। आप लोग को जोन से चॉइस करना हो उसको। रिकॉर्डिंग सबके लिए ओपन है, रिकॉर्डिंग कोई किसी की देखो, लेकिन ग्रुप में एक में ऐड किया जाएगा जिसमें आपने सिलेक्ट किया होगा ऑप्शन के अंदर। ठीक है? और किसी के कोई डाउट है कि क्लास से रिलेटेड? सर मेरा नाम जानवी है। नमस्कार। मैंने आज सुबह रजिस्टर किया था, लेकिन मुझे किसी ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है। मैम रुक जाओ। एनजीओ है ये। एनजीओ में बैंक से स्टेटमेंट आएगी घूम के कल मेरे पास। अच्छा। उसके बाद टीम चेक करेगी, आपकी आईडी चेक करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो 2-3 दिन का टाइम लगता है एनजीओ में मैम। पर्सनल नहीं है ना, एनजीओ का काम है, हाँ। इसलिए। तो सर अकाउंट मेरी मतलब क्लास का लिंक कैसे मिलेगा मुझे? आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, तब तक मैं आपको पर्सनल लिंक दे दूंगा। ठीक है? ठीक है। बाकी 2 दिन में आप ऐड हो जाओगे ग्रुप में। ओके। या हेमंत सर का थैंक यू सो मच। सभी अतिथियों का स्वागत है। हम क्लास को ओवर ही कर रहे हैं। आई थिंक मैं सभी के डॉक्टर डाउट्स कंप्लीट हो गए। यस डॉक्टर रमेश, आई थिंक। रमेश भांडेबुचे बोल रहा हूँ सर, नागपुर से। यस सर। हाँ, जो भार्गव सर जो कॉलेज में पढ़े हैं वही कॉलेज में हम उनसे सीनियर पढ़े हैं 73 बैच में। तो अभी मेरा क्या एज बात है। 70 चल रहा है सर मेरा। नमस्कार। और भार्गव सर की तरफ मैं इंटर्नशिप करना सर, आपके जो पिताजी थे उनकी तरफ मैं इंटर्नशिप करता था ओ घर में माय आकर। गॉड, ओ माय गॉड। हाँ हाँ। आप तो सुपर सीनियर है। आप बहुत छोटे थे सर जब। अच्छा, क्या बात है रमेश हाँ जी, सो नाइस। हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगा। हाँ मेरा सर नमस्कार, आपको मेरा MBBS। नमस्कार। नमस्कार। मेरा MS सर्जरी हुआ है सर। पिछले साल मैंने PG डिप्लोमा यौगिक साइंस किया और अभी MSc यौगिक साइंस कर रहा हूँ। अभी कवि कालिदास यूनिवर्सिटी है ना रामटेक में अपना। यस कवि कालिदास, यस। हाँ वहाँ से कर रहा हूँ सर। तो अपना ये जो सर आप जैसा बोल रहे हैं वैसा मेरा भी व्यू है कि आगे चल के अपना मेडिकल साइंस और यौगिक साइंस है, तो इसके कॉम्बिनेशन से अपना काम चलने को ना। और मेरा सर्जरी में मैं विधारा करके जो वनस्पति है सर उसके ऊपर मैंने रिसर्च किया कि पोस्ट ऑपरेटिव में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं पब्लिश अभी भी किया क्या सर उसको, आपने? हाँ मैंने ऑपरेशन के बाद में उसको यूज कर रहा हूँ मैं अभी 20 साल से। क्या और बात, उसे पब्लिश करेंगे हाँ सर। हाँ। और उसके बाद में सर ये अपने राहुल सर है, अपने जितेंद्र सर है, इनसे अभी मेरी पहचान हुई है। तो उनसे उनका मैं बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि अपने ग्रुप में उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। और इस प्रकार से मेरे को स्क्रिप्चर सीखने में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे मेडिकल साइंस में ये जो कुछ भी इसमें स्क्रिप्चर्स में लिखा है ये बहुत ही डिफरेंट लगता है और ऐसा लगता है कि उसका एक्सपीरियंस अपन ने करने को ना। क्योंकि Yes. पास तो अभी अपने लाइफ में चलते ही रहता है पास फेल, लेकिन उसका जो एक्सपीरियंस है उसमें चक्र ध्यान है, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो अपने को एक्सपीरियंस करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। तो इसलिए मैं सर का बहुत ही धन्यवाद मानता हूँ कि मुझे आपके ग्रुप में ऐड किया है। हरिओम Yes, सर। राहुल जी प्लीज कनेक्ट मी टू रमेश जी। श्योर जी सर, सर। श्योर। आई विल शेयर हिज नंबर टू यू सर। थैंक यू। मुझे और एक दूसरे मीटिंग में जाना होगा राहुल, तो मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम सर। प्रणाम सर। आई थिंक सभी की इंक्वायरी हो गई है। भारती मैम हाथ उठा रही है। भारती मैम बताइए। सर हरिओम सर। हरिओम हरिओम। हेलो। हेलो। सर मुझे ये कहना था कि टाइम सर क्या रहेगा, बिकॉज हम 1 बजे के बाद ही फ्री हो पाते हैं सर, उसके लिए। ओके, वो चिंता मत करो, ज्यादातर क्लास 2 बजे के बाद रहती है।